Hello everyone, welcome to Sriji Public School online classes, and in today's video in our third chapter, that is private, public and global enterprises in 11th business studies, we shall cover the topic statutory corporation or public corporation and its meaning as well as features we shall discuss in this video. So let's start the topic without wasting any time. The very first point is meaning of a public corporation or statutory corporation. Question arises, what is public corporation or a statutory corporation? A public corporation or statutory corporation, as written on the whiteboard you can see, it's a body corporate formed under the special act of parliament. ये statutory corporation क्या है? जो पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट बना के जो बॉडी कॉर्पोरेट में कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करके या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो लेजिस्लेचर है उसमें फॉर्म किया गया है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन. इट्स ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. It is fully financed by government, central government और state government. इसकी जो पूरी फाइनेंसिंग की जाती है, फंडिंग की जाती है, वो fully state या central government के थ्रू की जाती है. Secondly, its power, rules, regulations, functions, its limitations, its objects are also defined in the act only. इसके जो पावर्स रहेंगे, जो भी लिमिटेशंस हैं, फंक्शंस हैं, इसके रूल्स रेगुलेशंस जो अप्लाई होंगे इस पे, तो वो भी जब एक्ट बनाया जाता है उस एक्ट में ही डिफाइन कर दिए जाते हैं. उसी के अकॉर्डिंग फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को काम करना पड़ता है. तो आई रिपीट द मीनिंग, इट्स ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड under the special act of parliament, formed by a special act of parliament. Secondly, its rule regulations, its limitations, functions are also defined in the act only. And for example, if we talk about the examples of statutory corporation or public corporation, a lot of examples are there. RBI is there, Reserve Bank of India, formed under the special act of parliament. State Bank of India is there. UTI means Unit Trust of India. Then LIC means Life Insurance Corporation, and Air India. Another examples may also be given like Doordarshan, Prasar Bharati, or any bank, centralized bank. We can given any example. So these are the examples: RBI, SBI, UTI, LIC. Full form of UTI is a Unit Trust of India, and full form of LIC is a Life Insurance Corporation. Air India is also an example. Doordarshan, Prasar Bharati, or any another bank, PNB हुआ, like government bank कोई भी आप दे सकते हो example इसका. And then features of public corporation or statutory corporation. If we talk about the feature, the very first feature is it is set up by special act of parliament. जो फॉर्मेशन होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की या पब्लिक कॉर्पोरेशन की, दैट इज थ्रू ए स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, पब्लिक कॉर्पोरेशन की और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, वी कैन से. सो फर्स्ट फीचर इज सेटअप बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. सेकंड फीचर इज इट इज फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट. जो पूरी फंडिंग की जाती है वो गवर्नमेंट फंडिंग करती है, गवर्नमेंट पैसा लगाती है. Third feature is its powers, objects, functions, rule regulations, objects, we can say limitations, are decided by the act or defined in the act, we can say. Its power, objectives, functions, limitations, rule regulations, all are defined in the act only. तो act में ही इसके power वगैरह सब कुछ लिखे होते हैं, functions, rule regulation, उसी के according इसको काम करना पड़ता है. Fourth feature is its ऑपरेटेड अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. इसकी जो कंट्रोल होता है, ऑपरेटिंग होती है, जो भी वो टोटल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है. गवर्नमेंट अपने नियंत्रण में, अपनी देखरेख में इसको ऑपरेट करवाती है. फिफ्थ फीचर इज इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी देन गवर्नमेंट, वी ऑल्सो कैन से. इसकी जो एंटिटी है वो अलग है, एंटिटी गवर्नमेंट से अलग माना जाता है, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो इससे पहले हमने किया था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वो गवर्नमेंट का ही पार्ट था, वहां पे सेपरेट एंटिटी नहीं थी. बट जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, देयर इज सेपरेट लीगल एंटिटी देन गवर्नमेंट से अलग इसकी एंटिटी है.
And the sixth point of feature is it is managed by government nominated board of directors. Government board of directors नॉमिनेट करके दे देती है पब्लिक कॉर्पोरेशन को या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को, वो इसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर इसकी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. And then seventh feature is its main motive is to provide service to public. तो मेन जो पर्पज रहता है वो प्रॉफिट अर्न करना पर्पज नहीं है, जो पब्लिक है उसको सर्विस देना पर्पज है. ये कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, SBI का है, UTI का है, LIC का है, सभी जगह सर्विस मिल रही है हमें. मेन मोटिव इनका प्रॉफिट कमाना नहीं है, पब्लिक को सर्विस देना प्रेफरेंस है यहाँ का. तो ये हो गया सेवंथ फीचर में, मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू जनरल पब्लिक. एंड एट फीचर इज इट हैज इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन. भी अपने स्टाफ रिक्रूटमेंट के इसके अपने खुद के रूल रेगुलेशन है, उन्हीं रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये स्टाफ को अपॉइंट करते हैं. और उनकी रेम्यूनरेशन में उनकी सैलरी वगैरह वो खुद ही डिसाइड करते हैं जो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग. तो इनके अपने रूल रेगुलेशंस हैं रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग. एंड द नाइन्थ फीचर इज इट कैन इंडिपेंडेंटली यूज इट्स फंड्स. तो जो फंड्स अलॉट किए जाते हैं, फंड्स मिलते हैं, तो उनपे कोई मिनिस्ट्रियल सैंक्शनल वगैरह, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था कि फंड्स यूज करने हैं तो मिनिस्ट्रियल सैंक्शन जरूरी होता था, मिनिस्टर से सैंक्शन करवाओ, परमिशन लो उनकी. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, दैट कैन यूज इट्स फंड्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी बर्डन, विदाउट फ्रीली इट कैन बी यूज्ड फॉर इट्स पर्पज, फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव्स. So there is no restriction on using funds. And the 10th feature is its revenue is deposited back to the government treasury. तो यहाँ भी देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी जो रेवेन्यू था दैट गोज बैक टू द ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी. तो यहाँ भी जो रेवेन्यू है दैट ऑल्सो गोज बैक टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, दैट इज डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी. सरकारी खजाने में जो भी अर्निंग्स ये करती हैं, रेवेन्यू ये कमाती हैं, तो वो गवर्नमेंट रेवेन्यू में, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाता है. And the last feature of statutory corporation or public corporation is it can sue and can be sued. Sue means filing a case in court. So it can file a case in the court against any party, and any outside party also can file a case against statutory corporation in the court. So it can sue and can be sued. So these were the features and meaning of statutory corporation. If we revise its in very fast speed, then if we talk about meaning, it is a body corporate formed under the Act of Parliament. ये main meaning है इसका, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. बाकी और बताना चाहो फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, लिमिटेशंस वगैरह एक्ट में डिसाइड होती है, एग्जांपल देना चाहो तो अलग बात है. मेन जो मीनिंग है दैट इज इट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. फीचर्स की बात करें, सेटअप बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल एक्ट से बनता है. फुल्ली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पूरी फंडिंग करती है इसकी. पावर, ऑब्जेक्टिव, रूल रेगुलेशन, फंक्शंस डिसाइडेड बाय द एक्ट. इट इज ऑपरेटेड अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. ये जो ऑपरेशन होता है इसका फंक्शनिंग होती है टोटल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है. सेपरेट लीगल एंटिटी है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, अलग एंटिटी है इसकी. एंड सिक्स्थ इज मैनेज बाय गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. की जो मैनेजमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, गवर्नमेंट जो नॉमिनेट करके देती है इनको. मेन मोटिव प्रोवाइड सर्विस करना है, सर्विस प्रोवाइड करना जनरल पब्लिक को. और रिक्रूटमेंट के अपने रूल्स हैं, रेम्यूनरेशन वगैरह देने के स्टाफ को, तो अपने रूल रेगुलेशन है. कैन इंडिपेंडेंटली यूज इट्स फंड्स को, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फंड्स को यूज करने पे, अपने अकॉर्डिंग अपने पर्पज के लिए यूज कर सकता है. रेवेन्यू गोज बैक टू द ट्रेजरी, वापस जमा हो जाता है सरकारी खजाने में जो भी अर्निंग्स है, रेवेन्यू है. एंड लास्ट फीचर कैन सू एंड कैन बी सूड. ये फाइल कर सकता है केस किसी पार्टी के अगेंस्ट, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट भी कोई पार्टी केस डाल सकती है कोर्ट में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.